तो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस द Debye-Huckel-Onsager इक्वेशन। On the basis of Debye-Huckel theory of strong electrolyte, Debye-Huckel had derived an equation relating to the observed conductance, that is lambda c, at particular concentration to that at infinite dilution। मतलब जो infinite dilution पे observed conduction है, conductance है, उसका relation ये Debye-Huckel ने दिया हुआ है। They have calculated the magnitude of the symmetry, asymmetry and electrophoric effect in terms of factor such as valency of the ions, ionic concentration, dielectric constant and viscosity of the medium। Their equation was subsequently improved by Onsager और इसलिए उसको फिर Debye-Huckel-Onsager इक्वेशन कहा है। फॉर यूनिवॉलेंट इलेक्ट्रोलाइट, जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, जो यूनिवॉलेंट है, उसके लिए इक्वेशन इस तरीके से होगा। लैम्डा सी इज इक्वल्स टू लैम्डा जीरो माइनस इन ब्रैकेट 82.4 बाय dt respect to the power by 1/2 n plus 8.20 multiplied by 10 to the power 5 upon dt the respect to the power of the 3/2 multiplied by lambda 0 bracket complete under root c, where lambda c is the equivalent conductivity at temperature the particular concentration c, lambda 0 equivalent conductivity at infinite dilution, d dielectric constant of the solution the solvent, T temperature in Kelvin. The general form of the above equation is represented by lambda c is equals to lambda 0 minus a plus b lambda 0 into under root of c, where it can be the again written as lambda 0 minus lambda c is equals to a plus b lambda 0 under root of lambda c, where a is equals to 82.4 upon dt with respect to the power of 1/2 n and b is equals to 8.2 multiplied by 10 to the power 5 upon d2 raised to the power 3/2, where a and b are constant and dependent only on the temperature and the solvent. Now dear friends, the next question: what are the applications of the Kohlrausch law? Explain, or it can be again asked as discuss the application of the Kohlrausch law in respect of determination of degree of dissociation, dissociation constant of acids, solubility of the sparingly soluble salt. So the answer, the application of the Kohlrausch law are as follows. First, determination of the degree of dissociation. According to Arrhenius' theory of electrolytic dissociation, the increase in equivalent conductance with dilution is due to increase in dissociation of the electrolyte. Simply जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बढ़ता है अरोनियस थ्योरी के हिसाब से, क्यों? जो आयंस के जितने ज़्यादा डिसोसिएशन होंगे उतना ही इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बढ़ेगा। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट ए गिवन डायल्यूशन V इज गिवन एज, मतलब जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जितना डिसोसिएट होगा टोटल में से, टोटल जो भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, ठीक है ना, एट द गिवन डायल्यूशन, जो भी डायल्यूशन है, तो कैसे होगा? अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्बडा V अपॉन लैम्बडा इन्फिनिटी। इसमें लैम्बडा V क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एट द डायल्यूशन V, एंड लैम्बडा इन्फिनिटी इज इट्स इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डायल्यूशन। मतलब लैम्बडा V क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, डायल्यूशन V, और लैम्बडा इन्फिनिटी क्या है? उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है एट infinite dilution. However, this relationship is found to hold good only for weak electrolyte. But ये जो relation हो रहा है, हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ जो गुड इलेक्ट्रोलाइट है, अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उसी के लिए ये लागू पड़ता है। The value of lambda infinity for weak electrolyte can be calculated using Kohlrausch law। तो उसी के लिए weak electrolyte का हम क्या कर सकते हैं? Kohlrausch law को यूज़ करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। सेकेंड वाला देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ये कैसे करते हैं? कंसिडर द वीक एसिड HA, मान के चलते हम, सपोज वी स्टार्ट विथ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू C मोल पर लीटर। C मोल पर लीटर उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, मान के चलिए, एंड अल्फ़ा इज इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और अल्फ़ा इतना क्या हुआ? डिसोसिएट हुआ है, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा फिर? C माइनस सी अल्फ़ा होगा, क्योंकि इतना C अल्फ़ा डिसोसिएट हुआ है C में से, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो H प्लस सी अल्फ़ा A माइनस सी अल्फ़ा इतना डिसोसिएट हुआ है, तो कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम
C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा होगा। अप्लाइंग द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम वी विल हैव, हम इसको लिख सकते हैं K इज इक्वल्स टू H प्लस A माइनस अपॉन H A इज इक्वल्स टू C अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अपॉन C 1 माइनस अल्फ़ा, C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। तो उसको कैसे होगा? सो दैट इज इक्वल्स टू C अल्फ़ा स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ये होगा K। दस नोविंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फ़ा एट द कॉन्सेंट्रेशन C, द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट K0 ऑफ द एसिड कैन बी डिटरमाइंड। मतलब हमें अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा पता है एट कॉन्सेंट्रेशन C, तो हम क्या कर सकते हैं? डिसोसिएशन कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट K0 हम निकाल सकते हैं दोस्तों। द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कंडक्टर मेजरमेंट्स एंड एक्सप्लेन इन इक्वेशन 1 अबोव। हम क्या कर सकते हैं? वैल्यू ऑफ अल्फ़ा कंडक्टेंस मेजरमेंट से हम निकाल सकते हैं। सो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू लैम्बडा वी अपॉन लैम्बडा इन्फिनिटी, अल्फ़ा होगा। एंड द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट कॉन्सेंट्रेशन V, दैट इज इन ब्रैकेट लैम्बडा V, कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सप्रेशन। कौन से एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं दोस्तों? लैम्बडा V इज इक्वल्स टू K मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन C। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट कॉन्सेंट्रेशन V हम इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। लैम्बडा V इज इक्वल्स टू K इंटू 1000 बाय C, वेयर K इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड C is the concentration. Now the third one is, dear friends, to determine the solubility of the sparingly soluble salt. Sparingly soluble salt की solubility निकालना. Salt like the barium sulfate, then plumbum sulfate, lead sulfate, then silver iodide, lead fluoride are considered as the insoluble. वो soluble नहीं है, but they do possess some solubility, दो टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट एट शोन बाय द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। बहुत कम, एक्चुअली इनसोल्यूबल है लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में वो सोल्यूबिलिटी उनकी है। बीइंग वेरी स्लाइटली सोल्यूबल, देयर सोल्यूबिलिटी कैन बी कन्वीनियंटली डिटरमाइंड बाय इवापोरेटिंग अ नोन वॉल्यूम ऑफ देयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उनका जो नोन वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको इवापोरेट करके हम उसकी सोल्यूबिलिटी मालूम कर सकते हैं, हालांकि वो इनसोल्यूबल है बट जितना अमाउंट सोल्यूबल होता है। हैंस टू डिटरमाइन दिस कोलरश लॉ कैन बी एम्प्लॉयड एज फॉलोज। Because of their very low solubility, their saturated solution is very dilute and may be considered to be one at infinite dilution. Infinite dilution में ही एक्चुअली बहुत कम soluble है, तो क्या होगा? Very low solubility, their saturated solution is very dilute. Saturated solution भी क्या उसका बहुत dilute होता है, ठीक है ना? क्योंकि एक्चुअली solubility कम है तो saturation point तो ख़त्म पहले से ही ना, तो soluble कहाँ होगा और solution पहले dilute होगा। बट ठीक है ना, हैंस फॉर सच सोल्यूशन लैम्बडा इज इक्वल्स टू लैम्बडा इन्फिनिटी, बट लैम्बडा वी इज इक्वल्स टू के बाय सी, इसीलिए हैंस लैम्बडा इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू के बाय सी। नाउ द अकॉर्डिंग टू कोलरश लॉ लैम्बडा इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू लैम्बडा ए प्लस लैम्बडा सी, हैंस लैम्बडा इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू लैम्बडा ए प्लस लैम्बडा सी इज इक्वल्स टू के बाय सी। जो लैम्बडा इन्फिनिटी ए और बी और सी लिख सकते हैं। Now if specific conductivity of saturated solution, that is K and lambda infinity for the solution, is known, that is E, the concentration of saturated solution can be calculated. तो हम क्या कर सकते हैं? लैम्बडा इन्फिनिटी, ठीक है ना, जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन K, लैम्बडा इन्फिनिटी अगर हमें पता है तो हम क्या कर सकते हैं ना, तो हम क्या कर सकते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो है क्या कर सकते हैं? हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। यस, हम उसका कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन द डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम और क्या कर सकते हैं? अमाउंट ऑफ सॉल्ट कितना प्रेजेंट है उसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, वो भी हम निकाल सकते हैं, उसकी सोल्यूबिलिटी। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट एज द नंबर ऑफ आयंस ऑफ द सॉल्ट इन द सॉल्यूशन आर कंपैरेटिवली लेस, द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ड्यू टू द वाटर हैज़ टू बी डिडक्टेड। तो वाटर की जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वो हमको निकालनी होगी, क्योंकि सोल्युबिलिटी बहुत कम है, उसकी कंडक्टिविटी नहीं के बराबर होगी कुछ जो इनसोल्युबल सॉल्ट है, टू बी डिडक्टेड फ्रॉम दैट ऑफ द सॉल्यूशन टू ऑब्टेन द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ड्यू टू द सॉल्ट, एंड हैंस द K salt is equals to K solution minus K water. In this way
These are the, you can say that, the advantage or the uses of the what, this law.